If you are someone who's preparing for the UPSC Civil Services examination, you would be well aware of Labasana and the charm it has among all aspirants. It is a dream for every aspirant to be a part of the premier training institute situated in the beautiful hills of Mussoorie, Uttarakhand. Here today on CTWT, we have a special episode in store for you. One that features Mr. Abhishek Saraf, who has secured the All India rank of 8 in the UPSC CSC examination of 2019. He has gone to Labasana and is done with the foundation course. Do watch and listen in to what he has to say. Hi, this is Abhishek Saraf. I come from Bhopal, Madhya Pradesh, and I've secured All India rank 8th in UPSC Civil Service exam of 2019. I joined the Indian Administrative Service on 12th October 2020. I'm a civil engineer by training, and that's also my favorite subject. So from date of the result to the destination, see, my interview was on 30th July. That was the last date of interviews for Civil Service exam of 2019. So my interview preparation went on for 7 months. It was a very tiring experience, and I was completely drained कि अब हिम्मत नहीं बची अगले साल एग्जाम देने की. But then I was able to avoid that phase की जो anticipation वाला phase होता है कि interview दे दिया, अब you are introspecting कि क्या होना है क्या नहीं होना है. So that was like just 5 days for me. So that was fortunate enough. So the results came on 4th August. And obviously with the rank that I got, my family, friends, relatives, everybody was very ecstatic. But then began the phase, another phase of uncertainty. Like there's a COVID pandemic going on. So we were very uncertain कि अब FC होगा कि नहीं होगा. Will it start on the last week, on the usual date of the last week of August? या फिर online होगा या offline होगा. तो ये anticipation काफ़ी चल रहा था. Then there were talks and interviews going on. I was visiting friends and relatives as much as possible. But considering the limitations of the pandemic, it could not be done at a larger scale. एंड काफ़ी अनसर्टन फेज़ होता है जब ये रिजल्ट आता है. उसके बाद ज्वाइनिंग, तब यू डोंट नो कि फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी, क्या क्या प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ेंगी. तो दैट हैड टू बी डन इन एन एक्सपेडाइटेड मैनर. ऑब्वियसली सम गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स हेल्प, एंड देन फाइनली वी गॉट अ लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर सर ऑफ लबासना कि इट वॉज इन्फॉर्म दैट FC विल हैपन, इट विल हैपन इन एन ऑफलाइन मोड, बट देन द डेट्स हैड नॉट कम. एंड दैट देन उसमें ये होता रहा कि डेट्स केप्ट ऑन बीइंग पोस्टपोन्ड ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि दे हैड ऑल्सो टू मेक द प्रिपरेशंस. इट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस लॉन्ग दैट द FC वॉज गोइंग टू हैपन for the entire batch together at Labasana. Otherwise वो 2 या 3 locations में होता था. तो they had also to make the preparations. फिर थोड़ा सा pandemic के कारण preparations करनी पड़ी. So this was a phase of uncertainty, but fortunately it could be compressed into 2 months, and we joined the academy on 12th October 2020. My first day at Labasana. देखिए होता क्या है जब when a probationer joins the academy, they are very excited, and so was I. So when I got to the academy, so I had this feeling that okay, this is the destination I was trying to get to for the past 4 years. I had already skipped 2 FCs. Because I wanted to upgrade my service. तो हुआ क्या, when I got to the academy gate, so we had to formally enter the academy. तो वहाँ पे जो reception है वहाँ पे you have to show your documents, वो हुआ. उसके बाद I was very excited कि अब यहाँ पे एक फ़ोटो खींचना है जहाँ पे लबासना का बोर्ड लगा है, ITBP का रिसेप्शन है, द गेट इज़ ओपनिंग की वो वीडियो बनाना है. I did make that video. उसके बाद as you entered the academy, कई सारे iconic photo spots होते हैं जो you keep on seeing on Instagram and Facebook के officers and trainees are posting photos. वो सारे देखे, चलते चलते वो दिख जाता है academy में as soon as you enter. So that was the most eventful thing कि अच्छा ऐसा लगता था ये भी मैंने photos में देखा है, ये भी देखा है. So that was very eventful. So then I had been given a room in the Narmada hostel, and we knew that rooms are going to be double seated. So my roommate was Mr. Vivek Rajput. He was from Railway Traffic Service and a resident of UP. And I had done graduation from IIT Kanpur, so we had a lot of common things to talk about. He was also an IITian from IIT Roorkee. So, and he was an architect, I was a civil engineer. So ये हम लोग का काफ़ी अच्छा bonding बन गया. So that was the first day, and I had reached on 11th October. So official joining was on 12th October. तो ये पहला दिन रहा था. थोड़ी photo clicking, थोड़ा रूममेट के साथ बॉन्डिंग, थोड़ा मूविंग इन. सो इट वाज वेरी कंफर्टेबल बाय द वे. अच्छा लगा था काफ़ी पहला दिन.
देखिए एक्सपेक्टेशन तो व्हाट यू मेक अप इन योर माइंड बेस्ड ऑन क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, बेस्ड ऑन क्या क्या आपने लोगों से सुना, देन फिर आपने फ़ोटोज़ देखे यहाँ वहाँ इंस्टाग्राम पे कि क्या क्या होता है। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि बहुत सुंदर सी जगह होगी एंड डेफिनेटली टर्न आउट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जो शास्त्री जी की स्टैचू है, सरदार पटेल का बस्ट है, नहीं तो कालिंदी लॉन्स है जहाँ से पीपल क्लिक फोटोज़ ऑफ द माउंटेन्स, वो सब देखने को मिला। एंड एक चीज़ ये कह सकते हैं कि यू वुड एक्सपेक्ट बेटर रूम्स इन द अकेडमी, यू वुड एक्सपेक्ट लार्जर रूम्स इन द अकेडमी, बट देन ये रियलाइजेशन होता है कि बाद में कि अकेडमी हैज़ बीन बिल्ट ऑन अ हिल, और हिल पे यू गेट लिमिटेड स्पेस, तो रूम्स थोड़े से छोटे थे, बट देन नर्मदा, कावेरी, गंगा, इन सब में अलग थोड़े से छोटे रूम्स थे, हैप्पी वैली, महानदी में बड़े भी रूम्स थे। तो ये थोड़ा सा रूम वाली बात थी। बाकी तो एक्सपेक्टेशन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी से रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिर सुंदर से अकेडमी होगी, वो सब काफ़ी अच्छा था। माई डेली रूटीन, देखिए दिन कैसे ख़त्म हो जाता है ये पता नहीं चलता है। कॉलेज में जब मैं था तब आई यूज़ टू फील दिस थिंग कि एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी, आप ख़त्म हो जाएंगे, पूरा दिन आपका निकल जाएगा, और वही चीज़ मेरे को फिर से लवासना में देखने मिली। तो डेली रूटीन क्या होता था, FC में देयर यूज्ड टू बी अ मॉर्निंग PT एट 6:30, तो वी हैड अ डबल सीटेड रूम। तो रूममेट मेरे 5 बजे उठते थे, मैं 5:30 बजे उठता था। वी यूज्ड टू फ्रेशन अप एंड गो टू द पोलो ग्राउंड। अब गोइंग टू द पोलो ग्राउंड वॉज अ वेरी प्लेजरेबल एक्सरसाइज। आप नीचे जाते थे स्लोप से, बट जब PT होती थी उसके बाद जब वापस चढ़ते थे दैट यूज्ड टू बी अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, बट समहाउ विद फ्रेंड्स वो चलते चलते हो जाता था। तो ये 7, 7:30, पौने 8 बजे तक वी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम पोलो ग्राउंड। उसके बाद क्लासेस यूज्ड टू स्टार्ट एट 9:30। वीकली शेड्यूल हम लोग को आ जाता था कि कहाँ जाना है, ज्ञानशिला या फिर संपूर्ण आनंद ज्ञानशिला की किस रूम में जाना है, तो वीकली शेड्यूल आ जाता था, क्लासेस होती थी, यूज्ड टू लिसन टू द लेक्चर्स। फिर शाम को 5 बज जाते थे ये करते करते। उसके बाद क्या होता था, देयर आर n नंबर ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज़ इन द अकेडमी, लाइक देयर इज़ एडवेंचर क्लब और देयर इज़ फाइन आर्ट्स एसोसिएशन और देयर इज़ हाउस जर्नल सोसाइटी। उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते थे, तो यू पार्टिसिपेट इन दोस, यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड पिक एंड चूज। एंड देन FC में क्या हुआ, देयर यूज्ड टू बी 428 पीपल इन द अकेडमी। तो नए नए लोग मिल रहे हैं, नए नए कल्चर से लोग मिल रहे हैं, यू इंटरेक्ट विद देम, यू हैंग आउट विद देम। ये करते करते लगभग रात हो जाती थी, 10-11 बजे तक रूम पे पहुँचते थे। दैट वॉज द डेली रूटीन। एंड आई शुड से कि कमिंग फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट, जब हम लोग 12-13 घंटे रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, 20-22 घंटे एक ही रूम में हैं, कमिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट टू द अकेडमी जहाँ यू गेट टू हैंग आउट विद n नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड पार्टिसिपेट इन n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू मिस्ड आउट ऑन, कि पिछले 3-4 साल जो आप नहीं कर पाए, वो सब करने को मिलता था। नई चीज़ें जैसे पोलो है, नहीं तो बिलियर्ड्स है, नहीं तो आई वॉज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन बट देन आई गॉट अ चांस टू एंगेज इन मल्टीपल स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें करने मिलता था। इट वॉज अ वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। सो हॉस्टल लाइफ इन लवासना, देखिए हॉस्टल लाइफ इन लवासना आई हैव कंप्लीटेड FC एज वेल एज फेज़ 1। तो हुआ क्या कि FC में दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स कि पूरे के पूरा बैच जो है सिविल सर्विस एग्जाम 2019 का, जो सारे सर्विसेज के 2020 बैचेस हैं, दे वर डूइंग द FC टुगेदर। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कई साल में। एंड देन वी हैड डबल सीटेड रूम्स। तो हॉस्टल लाइफ में एक तो ये था कि देयर वर n नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे लोगों के साथ हैंग आउट करते थे, पार्टीज़ भी होती थी, इंट्रैक्शन भी होता था। एंड वन थिंग आई फाउंड वेरी नाइस अबाउट द अकेडमी इज़ दैट कोएड हॉस्टल्स हैं, सब मैच्योर एडल्ट्स हैं, पीपल आर डिसेंट, दे बिहेव इन अ डिसेंट मैनर, और ऐसा कोई अभद्र घटना जिसको कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी बात यह है कि द स्पेशल थिंग अबाउट द अकेडमी इज़ इट हैज़ ट्रस्ट इन इट्स OTs और स्टूडेंट्स, वॉट एवर वी वांट टू कॉल देम। तो आपको फ्रीडम मिलता है, यू कैन मूव अराउंड, यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन हैंग आउट, इंट्रैक्शन होता है। तो जो मोटो ऑफ द FC है, जैसे इफ आई वर टू पुट इन डायरेक्टर सर्च वर्ड, इट इज़ एस्प्री डिकोर, कि कमराडी डेवलप करें वेरियस सर्विसेज के बीच में, फ्रेंडशिप डेवलप करें, नेटवर्किंग करें, सोशलाइज करें, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। एंड अकेडमी प्रोवाइड्स इनफ हैंग आउट पॉइंट्स, जैसे होम टर्फ है, नहीं तो वेरियस क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसमें अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यू बिकम मेंबर्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स। तो आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन होपफुली यू आर एबल टू कम आउट ऑफ द शेल जो आपकी लाइफ बन जाती है प्रिपरेशन के टाइम पे, उससे कंप्लीटली 180 डिग्री टर्न हो जाता है। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे लोगों से बात करना थोड़ा ड्रेनिंग सा एक्सपीरियंस होता है, बट देन इन पब्लिक लाइफ मेरे को लोगों से डील करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, दे गेट टू हैंग आउट विद पीपल, दे गेट टू एंजॉय। लाइक आई मेंशन कि हॉस्टल लाइफ है, लाउंज होती हैं, फिर नहीं तो होम टर्फ होता है, नहीं तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जाइए आप खेलिए, डेवलप योर पर्सनैलिटी, होन योर स्किल्स and exhibit, and academy also provides you, hostel also provides you enough opportunities to exhibit your skills। तो ये भी था, बट देन एक डिस्क्लेमर ये हो जाएगा कि इस साल हम लोग का बैच जो था वो they were in the midst of a pandemic,
तो हम लोगों को थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े, जैसे एक लॉकडाउन भी लग गया था बीच में, नवंबर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, 20 नवंबर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। तो वो थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे हॉस्टल लाइफ में, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी एनरिचिंग, मैच्योर एंड डेवलपिंग एक्सपीरियंस इफ आई कुड से। टॉकिंग अबाउट द मेस, देखिए फेसबुक पे मैं फ़ोटोज़ देखता था, लोग खड़े होते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, उनके पीछे लिखा होता था कर्मशिला। मुझे लगता था कर्मशिला, कर्म से रिलेटेड मतलब हार्ड वर्क, कुछ वर्किंग की जगह होगी, वहाँ पे शायद क्लास लगती होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी। जब मैं अकेडमी आया तो मुझे पता चला मेनली दैट इज़ द मेस बिल्डिंग। तो दैट वाज अ लिटिल बिट काउंटर इंट्यूटिव कि कर्मशिला में मेस है। ओके ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए ऑफिसर्स मेस की सबसे बड़ी खासियत ये कि इट इज़ बेसिकली रन ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस एंड इट इज़ ओन एंड रन बाय द ऑफिसर्स। तो जो मेस कमेटी होती है इट इज़ बेसिकली इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द बैच इटसेल्फ। अब ग्रेट इंडियन प्लेटर की बात करें तो वन थिंग आई नोटिस अबाउट द मेस इन द अकेडमी इज़ दैट वहाँ पे ऑलवेज इंश्योर करते हैं कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का मिक्स हो खाने में। दैट थिंग आई नेवर सॉ इन माई कॉलेज एट IIT कानपुर, कि ऐसा नहीं था कि साउथ इंडियन खाना नहीं बनता था, बट देन मेन्यू में ऐसा नहीं होता था कि साउथ और नॉर्थ का दोनों का खाना है। बट यहाँ पे मेस में लाइक द क्वेश्चन मेंशन कि ग्रेट इंडियन प्लेटर वो होता है, साउथ का कुछ ना कुछ रहेगा आपके खाने में, नॉर्थ का कुछ ना कुछ रहेगा। उसके बाद ये है कि स्टूडेंट्स गेट एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद लाइक आई मेंशन कि काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वेयर यू कैन गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो मेस इज़ अ मेजर एरिया ऑफ सोशलाइजेशन। फिर इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे रिपब्लिक डे हुआ, नहीं तो दिवाली हुआ, उसमें स्पेशल डिनर होता है, कई बार उसको बड़ा खाना बोलते हैं। तो देयर इज़ अ वाइड वैरायटी, इवन कॉन्टिनेंटल खाना, नहीं तो इंडियन खाना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेरियस डिशेज होते हैं। तो एटलीस्ट हाँ, दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग अबाउट द अकेडमी एंड इट वॉज द मेन्यू इज़ इवन डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट्स। तो अगर आपको स्पेशल कुछ खाना है तो यू कैन रिक्वेस्ट द मेस कमेटी, एज पर फीजिबिलिटी वो कर भी देंगे। टॉकिंग अबाउट द क्लासेस, देखिए क्लासेस जनरली 9:30 to 10 के आसपास शुरू होते थे एंड दे यूज टू गो ऑन टिल लाइक 4 or 5 डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड डिपेंडिंग ऑन कि और कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग की FC में 9:30 को क्लास शुरू होती थी और 5 बजे तक चलती थी, बट दोज वर रिलेटिवली वार्मर डेज। फिर हम लोग का इस साल अनफॉर्चुनेटली भारत दर्शन नहीं हो पाया, तो उसके बाद हम लोग भी कंटिन्यूड इनटू फेज़ 1 राइट आफ्टर द FC। तो तब थोड़ा ठंड हो गई थी तो क्लासेस 4 बजे तक ही चलती थी। तो शेड्यूल ये होता था कि 9:30 से 10:30 एक क्लास, फिर थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक, दैट इज़ कॉल्ड सन ब्रेक। और वो मुझे थोड़ा देर बाद समझ में आया कि सन ब्रेक क्यों कहलाता है। क्लासेस में सनलाइट नहीं होती, यू गेट वेरी कोल्ड इन मसूरी, तो यू नीड टू स्टैंड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो दैट वाज लाइक लिटरली सन ब्रेक। उसके बाद 2 घंटे का फिर से क्लास होती थी, फिर 1 से 2 के आसपास लंच होता था, और उसके बाद 2 या 3 घंटे की डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल फिर से क्लासेस होती थी। अब देखिए क्लासेस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इट इज़ एंड अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। FC हो रहा है, वेरियस सर्विसेज को एक्सपीरियंस देना है, नहीं तो फेज़ 1 हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस देना है। डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स होते हैं लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद द कोर्स टीम वॉज वेरी सेंसिटिव इनफ कि जो आगे के फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं OTs के, उसके लिए क्लासेस डिज़ाइन करने, जैसे ICT की क्लासेस होती थी, लीडरशिप मॉड्यूल्स की क्लासेस हैं। उसके बाद अलग अलग मॉड्यूल्स होते थे लाइक हैंडलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे एक आशीष गुप्ता सर हैं IPS, उनका लेक्चर हुआ था लॉ एंड ऑर्डर पे। फिर सेंसिटाइजेशन मॉड्यूल थे रिगार्डिंग वीमेन, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, चिल्ड्रन। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें forming a link with the syllabus of the civil service exam and some sort of continuation or to some extent also some overlap, ऐसे classes होते थे। and ये also ensure किया गया कि सिर्फ classes theoretical ना हो, but people from the field, working officers from the field are invited to share their experiences। और एक चीज़ और होती थी which is not that अनप्रिडिक्टेबल, बट सुबह हम लोग 5:30 बजे उठे होते थे, PT ग्राउंड जाते थे, उसके बाद चढ़ के आते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, थोड़ा भूखे हो जाते थे, थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट भी हो जाता था, तो समटाइम्स पीपल यूज टू फॉल अस्लीप, बट देन ओवरऑल इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। एंड देखा जाए तो आई वुड नॉट से दैट आई पेड अटेंशन इन एवरी लेक्चर, बट देन देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरी लेक्चर इफ यू आर इंक्लाइंड टू डू सो। टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिविटी एंड क्लब्स, लाइक आई मेंशन कि प्रिपरेशन के टाइम क्या आपकी लाइफ ऐसी होती है कि आप 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 20 घंटे एक ही कमरे में, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू आर नॉट सोशलाइजिंग, यू आर मोर कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ द इंटरनेशनल एरिना दैन द अफेयर्स ऑफ योर ओन हाउस। दैट चेंजेस व्हेन यू कम टू द अकेडमी एंड इट इज सपोज टू चेंज। तो होता क्या है कि देर आर n number of clubs, like there is the officers club which is in charge of sports and other festivities that are happening in the academy. So there is Fine Arts Association which is in charge of drama and cultural activities, and there is like the hobbies club, and then there is adventure club, there's house journal club, house journal society, then there is Rahul Sankritain Hindi Manch, there is basically literature of Hindi club। ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं। और फिर इनोवेशन क्लब है जैसे, तो उनके एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। देयर इज़ अ राइफल एंड आर्चरी क्लब,
तो अपने अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से, अपने अपने चॉइस के हिसाब से यू गेट टू इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज़। लाइक मैनेजमेंट क्लब के इवेंट्स होते हैं, शेयर मार्केट का इवेंट हुआ था अभी। तो द आइडिया ऑफ द अकेडमी इज़ कि पढ़ाई आपने बहुत कर ली, पढ़ाई होती रहेगी, लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, क्लासेस हो रही है 9 से 5, 9:30 से 5, वॉट एवर इट इज़। उसके बाद यू गेट टू explore your personality, develop your personality based on your orientation, as well as fulfill some of those aspirations which might not have been fulfilled due to the preparation for exam. एंड उसका एक इंटेंशन ये भी है कि यू फॉर्म टीम्स विद डाइवर्स सेट ऑफ पीपल, अपने बैच में इंटरेक्शन करें, अपने बैच में सोशलाइजेशन करें। और जैसे देखिए अब स्पोर्ट्स है या फिर इनोवेशन है, तो उसमें यू गेट प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद योर बैचमेट्स, एज वेल एज स्पेंड सम फन टाइम विद देम or explore whatever you want to do in the academy. So that was Abhishek Saraf, who shared with us his journey to Labasna, and we hope that you were able to enjoy this special episode here today on CTWT. Our team here at Unacademy would like to take this opportunity to wish all you aspirants out there the very best in your examinations. Thank you for tuning in.